Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 32 of Business Mathematics MTH 367. So we will continue with the chapter number 20 named Optimization Functions of Several Variables. So in last lecture we covered section 20.2 which was about partial derivatives, and we started section 20.3 which was about optimization of bivariate functions. And the topics which we studied were partial derivatives of bivariate functions, interpreting partial derivatives, and second order partial derivatives. The last lecture में हमने bivariate functions की जो partial derivatives है उसको study किया है. उसके बाद हमने interpretation पढ़ी है partial derivatives की, और उसके बाद हमने second order partial derivatives को पढ़ा है, और आखिर में हमने जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस है उसको स्टार्ट किया. सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ bivariate functions. We just introduced that what is optimization of bivariate function and how to find the critical points. So today's topics we will continue with section 20.3 which is optimization of bivariate function, and also we cover the 20.4. तो पहले हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा के रिलेटिव एक्सट्रीमा होता क्या है. उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विशिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है कि ये किस टाइप का क्रिटिकल पॉइंट है. उसके बाद हम टेस्ट पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कि टेस्ट कौन सा होता है, और आखिर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो बाइवेरिएट फंक्शंस की ऑप्टिमाइजेशंस हैं इसकी एप्लीकेशंस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम. सो वी रिकॉल दैट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस is introduced in the last lecture. So उसके जो basic concepts थे, so we start with the revisions of some of the concepts of the last lecture. A function z is equal to f of x y is said to have a relative maximum at x is equal to a and y is equal to b if for all points x y is sufficiently close to ab, f of ab is greater than or equal to f of x y. A function z is equal to f of x y is said to have a relative minimum at x is equal to a and y is equal to b if for all points x y is sufficiently close to ab, f of ab is less than or equal to f of x y. तो ये हमारी relative maximum और relative minimum की definitions थी. उसके बाद हमने जो necessary condition थी उसको पढ़ा के existence of relative maxima और minima की जो necessary condition है वो क्या है. A necessary condition for the existence of a relative maximum or a relative minimum of a function f whose partial derivatives fx and fy both exist is that fx is equal to 0 and fy is equal to 0. तो necessary condition में fx और fy दोनों को 0 होना चाहिए पुट करते हैं. The values x star and y star at which fx is 0 and fy is equal to 0 are critical values. तो वो values जहाँ पे fx और fy 0 होते हैं उसको हम critical values कहते हैं. The corresponding point which is x star y star f of x star y star is a candidate for a relative maximum or minimum on f and is called a critical point. तो इसके corresponding जो point होता है वो एक candidate होता है किसी critical point के लिए. And we did an example to find the critical points of some function. So now we do another example. Example, locate any critical points on the graph of the function f of x y is equal to minus 2x square minus y square plus 8x plus 10y minus 5xy. तो हमने इस function पे जो critical points हैं उसको find करना है. So we start the solution. पहले हम क्या find करेंगे, fx which is a partial derivative with respect to x. So this is minus 4x और y वाली टर्म 0 होगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 8, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास minus 5y. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फर्स्ट टर्म 0 होगी, माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y
प्लस नेक्स्ट टाइम 0 होगी और 10y का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 10 और लास्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगा -5x। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स you set fx is equal to 0. So this gives you -4x plus 8 minus 5y is equal to 0, or equivalently 4x plus 5y is equal to 8. So let's call it equation number 1, and fy को भी 0 पुट करेंगे, इससे आपके पास आएगा -2y plus 10 minus 5x is equal to 0, and this will give you 5x plus 2y which is equal to 10. So you will get 1 and 2. So solving the system, तो आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. सो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 and 2, वी गेट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0. तो आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 है. अब आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो यू नीड टू फाइंड, सो योर f of 2 was 0 gives you -8 plus 0 plus 16 minus 0 minus 0, यानी x की जगह पे आपने गिवन इक्वेशन में 2 पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है. तो आपके पास आएगा 8 thus the critical point is, यानी आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 2, 0 and 8. So the critical point is 2, 0, 8. So this is a quick revision of how to find the critical point and all the stuff which we did in the last lecture. So now primarily we start the new topic of today's lecture, distinguishing nature of critical points. So हमारा अगला टॉपिक है कि जो नेचर है क्रिटिकल पॉइंट्स के, उसको हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. So once a critical point has been identified, it is necessary to determine its nature. Aside from relative maximum and minimum points, there is one other situation in which fx and fy both equal 0. एक तो relative maximum और relative minimum के लिए fx और fy दोनों 0 होंगे. उसके अलावा एक और situation आ सकती है जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सैडल पॉइंट. सो विच इज़ रेफर्ड टू एज ए सैडल पॉइंट. A saddle point P is a portion of a surface which has the shape of a saddle. So ये बेसिकली एक टाइप की ऐसा पोर्शन होता है सरफेस का जिसकी शेप जो है वो सैडल टाइप की होती है. सो एट पॉइंट P where you sit on the horse, the value of fx and fy both equal 0. तो जैसे कि अगर आप घोड़े को देखें, उसके ऊपर काठी होती है, तो जिस जगह पे बंदा बैठता है तो उसकी वहाँ पे जो शेप बनती है उसको आप कहते हैं कि सैडल पॉइंट. इसलिए क्योंकि वहाँ पे सैडल जो होती है वो सीट को कहते हैं कि ख़ास किस्म की सीट को, तो इसलिए इस जो पॉइंट उस सरफेस पे इस टाइप का होता है उसको सैडल पॉइंट कहते हैं. However, the function does not reach either a relative maximum or a relative minimum at P. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो उसका रिलेटिव मैक्सिमम आया है या रिलेटिव मिनिमम आया है. तो यानी ना तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होता है और ना ही रिलेटिव मिनिमम होता है, बल्कि वो एक डिफरेंट टाइप का पॉइंट होता है जिसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. एक है आपका रिलेटिव मैक्सिमम, एक है रिलेटिव मिनिमम और एक है सैडल पॉइंट. टेस्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट. तो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को टेस्ट किस तरह से किया जाता है.
given that a critical point of f is located at x star, y star, or z, where all second partial derivatives are continuous, determine the value of d of x star y star, where d of x star y star is equal to fxx evaluated at x star y star into fyy evaluated at x star y star minus fxy square evaluated at x star व y स्टार. तो d ऑफ x स्टार y स्टार आपके पास ये एक फंक्शन आएगा और वो फंक्शन आप इस तरह से फाइंड करेंगे कि ये होगा आपके पास जो fxx है उसको आप x स्टार y स्टार पे एवेल्यूएट करके उसको आप fyy को x स्टार y स्टार पे एवेल्यूएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आप जो है fxy को x स्टार y स्टार पे एवेल्यूएट करके उसका स्क्वायर लेंगे, उससे आपके पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा. तो उस नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो किस टाइप का है. तो फॉर दोज ऑफ यू हु नो अबाउट द डिटर्मिनेंट्स, वी कैन सी दैट दिस डी ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार को हम इन द शेप ऑफ डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं. तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, जो कि एफ ऑफ एक्स एक्स वाई स्टार है, एफ एक्स वाई एक्स स्टार वाई स्टार है, और एफ वाई एक्स चूँकि एफ एक्स वाई के बराबर है तो बेसिकली तो यहाँ पे एफ एक्स वाई एक्स एक्स स्टार वाई स्टार, और यहाँ पे क्या है, एफ वाई वाई एक्स स्टार वाई स्टार. सो फॉर दोज ऑफ यू हु नो द डिटर्मिनेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, बट अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं भी पता है, सो यू जस्ट नीड टू एवेल्यूएट दिस एक्सप्रेशन डी ऑफ x star y star to test the nature of critical point. So now we have three possibilities, and there are two sub possibilities. The first possibility is that d of x star y star is positive. Then अगर d of x star y star positive हो तो या तो वो point relative maximum होगा या relative minimum होगा. तो relative maximum कब होगा, which is number A. The critical point is a relative maximum if both fxx x star y star and fyy x star y star are negative. यानी जो दोनों वैल्यूज़ हैं fxx और fyy की एट द x star y star, अगर वो नेगेटिव हैं तो आपका ये जो पॉइंट है ये relative maximum होगा. And part B is a relative minimum if both fxx x star y star and fyy x star y star are positive. तो ये relative minimum होगा अगर fxx x star y star और fyy x star y star जो हैं वो पॉजिटिव हों. तो आपके पास दो टाइप्स की पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब आपका d of x star y star पॉजिटिव होगा. सो नंबर 2 possibility is that if d of x star y star is less than 0, the critical point is a saddle point. तो यानी अगर आपका d of x star y star less than 0 है तो आपका critical point जो है ये एक saddle point है. And third possibility is that if d of x star y star is equal to 0, no conclusion can be drawn. तो अगर d of x star y star 0 हो तो आप कोई conclusion draw नहीं कर सकते. इसके लिए और methods हैं, but they are not part of your course. So we just stick to the given information on this page. तीन possibilities हैं d of x star y star, तो आपके पास relative maximum और minimum हो सकता है point, और अगर d of x star y star नेगेटिव है तो आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो सैडल पॉइंट है, और अगर ज़ीरो है तो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. सो नाउ वी डू एन एग्जांपल टू टेस्ट द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. So given the function f of xy is equal to minus x square minus y cube plus 12y square, determine the location and nature of all critical points. तो आपके पास ये फंक्शन गिवन है और हमने तमाम जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनकी लोकेशन और उनकी नेचर फाइंड करनी है. सो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो वी आर गिवन द फंक्शन f of xy is equal to minus x square minus y cube plus 12y square. So we have fx, which is minus 2x minus 0 and plus 0.
तो एफ एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2x के। एंड नाउ वी फाइंड एफ वाई। तो एफ वाई जो है वो हमारे पास आएगा 0 - 3y² प्लस 24y। So this implies that fy is equal to, अगर आप 3y को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 8 - y into 3y. So you put fx is equal to 0. This will give you -2x is equal to 0 and x is equal to 0. So the second is to put fy is equal to 0. Then this give you 3y into 8 - y is equal to 0. तो इसके आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे कि y is equal to 0 and or y is equal to 8. So you have 0 0 and 0 8. तो f of 0 0 जो है वो आपके पास 0 आएगा और f of 0 8 जो है this would be equal to 256. So the critical points are number 1 is 0 0 0 और जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा that would be 0 8 and 256. Now you have found the two critical points. Now you need to find the nature of these critical points. So first you find the second order derivatives. So second order derivatives. So fxx आपके पास होगा -2 क्योंकि -2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं and your fxy would be 0 and fyx जो होगा वो भी 0 होगा and your fyy would be -6y plus 24. So for the first point now you find the d of 0 0 क्योंकि x star आपका और y star जो है वो 0 0 है. So you find d of 0 0. So you need to find f of fxx of 0 0 into fyy of 0 0 minus fxy of 0 0 whole square. तो अगर आप fxx को देखें तो this is equal to your -2. So fxx of 0 0 would also be -2 क्योंकि ये constant function है. Your fyy is equal to -6y plus 24. So fyy of 0 0 would be 0 plus 24 minus fxy जो है आपका फंक्शन है वो 0 है तो this would remain the 0 and this means that d of 0 0 is -48. This is less than 0, so this implies that a saddle point occurs at the point 0 0 0. तो पहले जो क्रिटिकल पॉइंट की नेचर है वो सैडल पॉइंट है की है. So now we consider the second point. उसके लिए हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज थी 0 8.
सो डी ऑफ 08 होगा आपके पास एफ एक्स एक्स ऑफ 08 इंटू एफ वाई वाई ऑफ 08 माइनस एफ एक्स वाई ऑफ 08 होल स्क्वायर. So fxx of 08 is -2, it is still a constant function, और fyy of 08 जब आप evaluate करेंगे you will get -48 plus 24. This is -6y plus 24 है तो ये -28 plus 24 आएगा, और माइनस fxy क्योंकि आपके पास 0 है तो ये 0 ही रहेगा. So this is equal to plus 48 which is greater than 0. तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. आपके पास एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई को आपने चेक करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है. सो क्रिटिकल पॉइंट इज ईदर relative maximum or relative minimum. So now you find the fxx of 08. The fxx of 08 is -2 and fyy of 08 is -24. So this is less than 0 and this is also less than 0. So दोनों आपके पास less than 0 हैं. Since both are negative, we conclude that a relative maximum occur at 0.8256. तो आपका जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है वो रिलेटिव मैक्सिमम है, और आपका जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट था वो सैडल पॉइंट था. तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर हम सिंपल प्रोसीजर लिखें तो हम सिंपल प्रोसीजर फॉर नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी शॉर्ट अगर टर्म में बयान किया जाए तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स और एफ वाई, उसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे क्रिटिकल वैल्यूज़. उसके बाद आपने डी ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, रादर डी ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार. If d is less than 0, then this implies you have saddle point and you can just stop here. और अगर आपके पास d greater than 0 तो दो हैं कि एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई बहुत पॉजिटिव हों तो रिलेटिव मिनिमम होगा, और अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई बोथ नेगेटिव हैं तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा, और अगर आपके पास डी 0 है तो नो कंक्लूजन. So this is basically the short and simple procedure to find the nature of critical points. and ये खुलासा है कि आप किस तरह से nature of critical points के लिए आपने कौन कौन से स्टेप करने होंगे. So this is the procedure. So the next topic is applications of bivariate optimization. अब हमने ये जो बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर पढ़ा है इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे. सो दिस सेक्शन रिप्रेजेंट्स सम एप्लीकेशंस ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस.
So our first example of the application of bivariate optimization is about the advertising expenditures. जैसे कि आपको पता है जब मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो टीवी के ज़रिए और रेडियो के ज़रिए या फिर इंटरनेट के ज़रिए आजकल एडवर्टाइजमेंट की जाती है मुख्तलिफ इश्तहारों की सूरत में या मुख्तलिफ एड्स की सूरत में। तो ये बेसिकली एग्ज़ाम्पल है कि इस किस्म की सिचुएशन में हमने एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। So a manufacturer's estimated annual sales in units is a function of the expenditures made for radio and TV advertising. तो एक मैन्युफैक्चरर है जो कि एक प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसने ये एस्टीमेट लगाया है कि उसका जो एनुअल सेल है नंबर ऑफ़ यूनिट्स के टर्म्स में, यानी अगर कितने यूनिट वो बेचता है वो डिपेंड करता है कि कितने पैसे वो टीवी और रेडियो एडवर्टाइजमेंट पे लगाता है। So the function specifying this relationship was stated as z is equal to 50,000 times x plus 40,000 times y minus 10x square minus 20y square minus 10xy, where z equals the number of units sold each year, x equals the amount spent for TV advertising and y equals the amount spent for radio advertising, x and y both in thousands of dollars. तो यहाँ पे बेसिकली ये रिलेशन फंक्शन गिवन है जो कि इस रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। इस फंक्शन के अंदर जो z है जो कि जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के उसके बराबर है, x जो है अमाउंट है जो कि वो टीवी एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहा है इन $1000, और y जो है वो अमाउंट है जो कि वो रेडियो एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहा है इन $1000। तो z जो है इसी तरह जो नंबर ऑफ़ यूनिट जिसके सेल होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करते हैं। सो द क्वेश्चन इज टू डिटरमिन हाउ मच मनी शुड बी स्पेंट ऑन टीवी एंड रेडियो एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर टू सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स यानी उस प्रोडक्ट के सेल करने के लिए कितने पैसे उसको टीवी और रेडियो के एडवर्टाइजमेंट पे लगाने चाहिए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ बाईवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक है टीवी एडवर्टाइजमेंट और एक है रेडियो एडवर्टाइजमेंट, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट्स विद द पार्शियल डेरिवेटिव्स। fx is equal to 50,000 minus 20x minus 10y, and fy is equal to 40,000 minus 40y minus 10x। तो अब हमने जो गिवन फंक्शन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। So you put fx is equal to 0 and this gives you 50,000 minus 20x minus 10y is equal to 0, or 20x plus 10y is 50,000, and fy is equal to 0 gives us similarly 10x plus 40y is equal to 40,000. So now basically we solve the system of linear equations. So this is our equation number 1 और ये हमारी equation number 2 है। So solving the system of equations, we get x is equal to 2285.72 and y would be equal to 428.57. So these are the values of x and y which we get from solving this system of equation. So now we find the value of the function at
these values of x or y. So f of xy would be f of 2285.72 428.57. f जो है अब इन दो वैल्यूज का फंक्शन है, और जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं व्हाट वी गेट इज 65714,296. तो एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास होगी 6,97,14,14,000 और 296. तो अब आपने नेचर ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी है. सो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जो कि आपके पास आया है x स्टार y स्टार f of x स्टार एंड y स्टार. So first you find the second order derivatives. f x is minus 20, f y जो है ये होगा आपके पास minus 10, minus 40 rather. f x y is equal to minus 10, also f y x is equal to minus 10. So you find the d of 2285.72 428.57. आपने d फाइंड किया, तो चूंकि तमाम कांस्टेंट फंक्शंस हैं तो आपके पास यही कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी. -20 into -40 minus into -10 square. So this is 700. So since d is positive and both fxx and fyy are negative, f has relative maximum here, which means that annual sales are maximum at 65 million plus 7,14,296 units. तो उस प्रोडक्ट के 6,57,14,296 यूनिट्स बिकेंगी अगर वो जो है 2,285.72 डॉलर्स टीवी एडवर्टाइजमेंट पे लगाएं और 428.57 हज़ार डॉलर्स रेडियो एडवर्टाइजमेंट पे लगाएं. So next example is about the pricing model. The manufacturer sells two related products, the demand for which are estimated by the following two demand functions. तो एक मैन्युफैक्चरर है और वो दो तकरीबन रिलेटेड किस्म की प्रोडक्ट्स है जिसको वो सेल कर रहा है. तो उन दोनों की जो डिमांड है उसका डिमांड फंक्शन हमारे पास गिवन है. Q1 is the demand of the product 1 and this is equal to 150 minus 2 times P1 minus P2, and Q2 is the demand function for the product 2 and this is equal to 200 minus P1 minus 3 times P2, where Pj equals the price in dollars of product J and Qj equals the demand in thousands of units for product J. तो आपके पास जो Pj है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस इन डॉलर्स को जो प्रोडक्ट J की है, और Qj है वो Qj जो है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड फंक्शन जो प्रोडक्ट J की है, और Q1 और Q2 जो है ये थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स की टर्म्स में ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. Examination of these demand functions indicate that two products are related. तो हम देख सकते हैं कि दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं.
The demand for one product depends not only on the price charged for the product itself but also on the price charged for the other product. तो किसी एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है एक तो वो अपनी प्राइस पे डिपेंड कर रही है प्लस जो दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस है उस पर भी डिपेंड कर रही है. The firm wants to determine the price it should charge for each product in order to maximize total revenue from the sale of the two products. तो फर्म जो है वो चाहती है कि हम वो प्राइस फाइंड करें कि जिसको चार्ज करने के हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो मैक्सिमम हो. दोनों प्रोडक्ट के सेल करने से जो उनके पास टोटल रेवेन्यू आएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए. तो हमने वो प्राइस फाइंड करनी है दोनों प्रोडक्ट्स की जिसके बाद हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू हो वो मैक्सिमम हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. This revenue maximizing problem is exactly like the single product problems discussed in chapter 17. जिस तरह के हमने chapter 17 में डिस्कस किए थे प्रॉब्लम सिंगल प्रोडक्ट के, इसी तरह बिल्कुल ये उसी तरह के ही क्वेश्चंस हैं. So the only difference is that there are two products and two pricing decisions to be made. तो यानी अब हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि दो प्रोडक्ट्स हैं और प्राइसिंग के दो डिफरेंट डिसीजंस हमने मेक करने हैं. Total revenue from selling the two products is determined by the function R is equal to P1 into Q1 plus P2 into Q2. जैसे कि हमें पता है कि रेवेन्यू को हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल कर रहे हैं उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं तो जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो उस प्रोडक्ट और उसकी जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो रहे हैं उसकी प्राइस और जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो रहे हैं उन दोनों के रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करके उनको सम करने से आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. सो दिस फंक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये फंक्शन हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में है. यानी एक है P1, दूसरा है Q1 और तीसरा है P2 और चौथा है Q2. बट वी कैन बेसिकली ट्रांसफॉर्म इट एज इनटू द फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, हम जो Q1 और Q2 को की जगह पे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन को पुट कर लेंगे यहाँ पे. सो वी पुट Q1 इक्वल टू 150 माइनस 2P1 माइनस P2 एंड Q2 is equal to 200 minus P1 or minus 3P2 in equation star. हमारे पास Q1 और Q2 की गिवन वैल्यू है, ये हमने पुट की है इस इक्वेशन स्टार में जो कि लास्ट इक्वेशन है इस स्लाइड के ऊपर. सो वंस यू पुट दिस वैल्यूज एंड यू सिंप्लीफाई यू गेट R टू बी 150 P1 माइनस 2P1 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 प्लस 200 P2 माइनस 3P2 स्क्वायर. So you get this revenue function when you simplify the expression of R. The next is we need to find the FP1 and FP2 यानी F का partial derivative यानी जो R है इसको हम as a function of P1 P2 भी लिख सकते हैं. R हमारा जो है वो function of P1 P2 है. तो हमने अब प्राइस फाइंड करनी है जो हमको मैक्सिमम रेवेन्यू दे. To examine the revenue for relative maximum points. तो अब हमने relative maximum points फाइंड करना है. तो उसके लिए हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव FP1 इज 150 माइनस 4 टाइम्स P1 माइनस 2 टाइम्स P2 and second partial derivative FP2 is minus 2 times P1 plus 200 minus 6 P2. So you put FP1 equal to 0 and this gives us 4P1 plus 2P2 is equal to 150. और जब हम FP2 को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2P1 plus
6p2 equal to 200, and we have this system of equations 1 and 2. Solving 1 and 2, we get P1 is equal to 25 and P2 is also 25. So now we determine f of 25 for 25, which is 4375. So the critical point occurs at 25, 4375. तो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा. So now we test the nature of critical point. So the nature of so first we find the second order derivatives, which is f p1 p1. ये आपके पास आ जाएगा -4, and then you find f p1 p2. ये आपके पास आएगा -2, and if you find f p2 p2, this will be -6, and f p2 p1 will also be -2. So if you find d of 25 or 25, चूँकि ये तमाम कांस्टेंट फंक्शंस हैं तो ये अपनी वैल्यूज को बरकरार रखेंगे. So this is -4 into -6 minus into -2 square. This is 24 -4 is equal to 20, which is greater than 0. So as f p1 p1 and f p2 p2 both are negative, a relative maximum occurs at P1 is equal to P2 is equal to 25. तो relative maximum आपके पास आता है P1 is equal to 25 और P2 is equal to 25 पे. यानी अगर आप दोनों प्रोडक्ट्स को 25 की प्राइस पे चार्ज करेंगे, and if you recall that P1 and P2 were the price in dollars, यानी दोनों प्रोडक्ट की अगर आप $25 प्राइस रखेंगे तो आपके पास जो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो डिमांड होगी दैट वुड बी -120 into -2 into 25 minus 25 is equal to 75. Q2 is equal to 200 minus 25 minus 3 into 25, which is equal to 100. और ये आपके पास 1000 यूनिट्स में है और ये भी thousands of units में. So that's how we use the nature of critical point to find the relative maximum or of the given function. तो आपके पास एक फंक्शन था जो कि जिसकी मदद से आपने वो प्राइस फाइंड करनी थी कि जो मुकर्रर करने से जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो जाए. तो हमने देखा कि अगर प्राइस दोनों प्रोडक्ट की $25 रखी जाए तो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो सेल होगी यानी जो डिमांड होगी प्रोडक्ट 1 की वो होगी 75,000 यूनिट्स और प्रोडक्ट 2 की भी होगी 100,000 यूनिट्स. So next example is about the satellite clinic location. तो satellite clinic कहते हैं की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ऐसे एक अस्पतालों के लिए या इस टाइप की हेल्थ फैसिलिटी के लिए जो कि जिसके अंदर तमाम सहूलतें तो ना हो लेकिन कुछ सहूलतें मैसर हों, यानी जो कि
दूर दराज के एरिया में या सबअर्ब की जो एरिया होते हैं उधर जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हेल्थ की, उसको सैटेलाइट क्लिनिक लोकेशन कहते हैं. सो द क्वेश्चन इज़ दैट a large health maintenance organization HMO is planning to locate a satellite clinic in a location which is convenient to 3 suburban townships. तो यानी 3 कस्बे हैं और उनके मुख्तलिफ पोजीशंस हैं. तो एक जो हेल्थ मेंटेनेंस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम HMO कहेंगे, तो एक सैटेलाइट क्लिनिक को लोकेट करना चाहती है उन जो कि उन तीनों कस्बों के लिए कन्वीनियंट हो. सो द रिलेटिव लोकेशंस ऑफ विच आर इंडिकेटेड इन द फिगर. तो वो जो 3 कस्बे हैं उनकी रिलेटिव लोकेशन हम फिगर में ड्रॉ करेंगे. द HMO वांट्स टू सेलेक्ट अ प्रिलिमिनरी साइट बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरियन. तो HMO जो है वो चाहती है कि कोई एक साइट वो सेलेक्ट करे उस क्लिनिक के लिए, और उसके लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है वो ये है. So determine the location XY which minimize the sum of the squares of the distances from each township to the satellite clinic. यानी किसी भी उन्होंने ऐसी लोकेशन के ऊपर क्लिनिक बनाना है जहाँ पे जो हर एक टाउन और उस लोकेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेके उसको अगर हम सम करें तो वो मिनिमम हो. So this is basically the criteria they have selected. तो हर वो जो कस्बा है उसका जो उस क्लिनिक से डिस्टेंस है उसको हम स्क्वायर करके सम करें तो वो मिनिमम हो. सो दिस इज़ द क्राइटेरिया. सो नाउ वी ड्रॉ द फिगर विच इज़ गिविंग अस ऑल द इंफॉर्मेशन. सो लेट्स रिकॉल दैट यहाँ पे हमारी नॉर्दर्न डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे साउथ होता है जब हम नक्शा बनाते हैं. तो देयर इज टाउनशिप ए विच इज़ एट द 4020 लोकेशन. एक है टाउनशिप बी जो कि ये 10-10 लोकेशन पे है, 10 व -10. और एक है हमारे पास टाउनशिप सी जो कि है -20 एंड 10 पे. तो ये हमारे पास 3 टाउनशिप्स हैं. ए जो है वो 40-20 पे है और बी जो है वो -10 व -10 पे, और सी जो है -20 व 10 पे है. So solution. The unknown in this problem are x and y, the coordinates of the satellite clinic location. तो अब हमारे पास जो unknown है वो क्या है, वो x y है जो कि सैटेलाइट क्लिनिक की लोकेशन है. यानी यहाँ पे हमने x y वो फाइंड करने हैं जो कि हमारे गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हों. So we need to determine an expression for the square of the distance separating the clinic and each of the town. तो अब हमने किसी भी टाउन और उस क्लिनिक के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है उनके स्क्वायर के लिए. तो इफ़ यू रिकॉल कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो x1 व y1 और x2 व y2, देन डिस्टेंस फार्मूले से हमारे पास है कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो हमने सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑल 3 टाउन्स फाइंड करना है और सैटेलाइट लोकेशन से. सो द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द क्लिनिक विद लोकेशन XY एंड द टाउनशिप A लोकेटेड एट 40 व 20 इज d स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 40 स्क्वायर प्लस y माइनस 20 स्क्वायर. तो अगर हम जो हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन XY है उससे टाउनशिप A का डिस्टेंस लें और उसको स्क्वायर फाइंड करें तो हमारे पास आएगा x माइनस 40 स्क्वायर प्लस y माइनस 20 स्क्वायर बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला. तो सिमिलरली हम जो बाकी टाउनशिप्स हैं उनके लिए भी फार्मूले फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हम इसी तरह b के लिए कंसिडर करें तो हमारे पास d स्क्वायर होगा x माइनस 10 स्क्वायर प्लस y प्लस 10 स्क्वायर.
और अगर हम c के लिए लें तो हमारे पास होगा डिस्टेंस का स्क्वायर x प्लस 20 स्क्वायर प्लस y माइनस 10 स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल दिस डिस्टेंसेस को जो फंक्शन बनता है उसको मिनिमाइज करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स वाई की कौन सी वैल्यूज के लिए द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच टाउन टू द सैटेलाइट लोकेशन इज मिनिमम। सो दिस इज द क्राइटेरिया सेलेक्टेड। तो अब ने सिमिलर एक्सप्रेशन फाइंड किए हैं और उसको हमने सम किए हैं, तो उससे हमारे पास आएगा s जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। तो इसमें हमने ये जो d1 स्क्वायर टाउन ए से डिस्टेंस है ये लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो राइट एज ए डी ए स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बी स्क्वायर, यहाँ पे डी सी स्क्वायर, यानी टाउन ए से जो डिस्टेंस का स्क्वायर ये है, टाउन बी से डिस्टेंस का स्क्वायर ये है और टाउन सी से जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो ये है। तो प्राइमरीली हमारे पास ये है डी ए स्क्वायर और ये है प्लस डी बी स्क्वायर और ये है प्लस डी सी स्क्वायर। तो हमने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का जो फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ओपन करके तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 60x माइनस 40y प्लस 2700। So we find fx, the partial derivative with respect to x, तो ये आएगा आपके पास 6x minus 60, and when you find fy you will have 6y minus 40. So put fx is equal to 0, give you 6x minus 60 is equal to 0 and x is equal to 10। और इसी तरह आप एफ वाई को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6y माइनस 40, तो y आपके पास आ जाएगा 20/3। सो नाउ वी टेस्ट द नेचर ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू, टेस्ट द क्रिटिकल पॉइंट। वी टेस्ट द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। सो उसके लिए हम पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ एक्स एक्स 6 आएगा, एफ एक्स वाई जो है वो 0 है, एफ वाई वाई हमारे पास है वो भी 6 है और एफ वाई वाई भी जो है वो 0 होगा। सो यू फाइंड डी ऑफ 10 और 20/3 सिंस दे आर कांस्टेंट फंक्शन, सो दिस विल बी 6 into 6 minus 0 which is 36 greater than 0, and since fxx of 10/20/3 and fyy of 10/20/3 are both positive, a relative minimum occurs on f where x is 10 and y is 20/3, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आपका मिनिमम होगा अगर आप x को 10 पे लें और y को 20/3 पे लें। तो अगर आप मैप पे वापस जाएं तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू 10 कि आपके पास यहाँ पे है और y इज इक्वल टू 20/3, समथिंग लाइक हियर, दिस वुड बी योर 10/20/3। सो दिस इज द आंसर। तो अगर आप यहाँ पे अपना सैटेलाइट क्लिनिक की लोकेशन रखेंगे तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच टाउन वुड बी मिनिमम, दैट इज द proposed location of satellite clinic। तो आपकी जो रिक्वायर्ड पोजीशन होगी वो होगी 10 और 20/3 पे। सो
This is all about today's lecture and also all about this course. As you would know कि आज का जो लेक्चर था हमारे कोर्स का आखिरी लेक्चर था. So we briefly review that. We covered section 20.3 and section 20.4. So optimization of bivariate functions हमारा 20.3 था. यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स और उनकी टाइप फाइंड की, रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम को डिस्कस किया और टेस्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़े. और एप्लीकेशंस ऑफ बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन जो था वो हमारा सेक्शन 20.4 था, जो कि हमने उसके बाद 3 एग्जांपल्स के ज़रिए पढ़ा कि जो बाइवेरिएट फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन है उसको आप किस तरह से अप्लाई करेंगे. सो ऑल इन ऑल वी फिनिश द मटेरियल फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स MTH 367. उम्मीद है कि इस कोर्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने का मौका मिला होगा बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में और इनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में किस तरह से यूज़ करते हैं इस सब के बारे में. और अब हम आपसे इस कोर्स की इजाज़त चाहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा और इस कोर्स को आप खूब तरह से सीखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें. तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. इस कोर्स के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर मोहम्मद इमरान कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता है. अल्लाह हाफिज़.